Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is paper first of BA part first, Foundations of Political Science, and in this video we will discuss about the approach that is behavioralism. So let's start. Behavioralism is known as revolution in our discipline that changed the goals, nature, subject, etc. thoroughly. It was the reason behind the differences between the traditional and modern approach of political science. It is also considered a new or modern approach to the study of political science started in USA in the 20th century after the end of World War II, that is in 1945. It was in fact a protest movement within political science against the achievements of traditional study of political science. In simple words, it emphasizes scientific, objective, and value-free study of political phenomena, particularly the behavior of the individuals, that is political behavior. So here comes the characteristics of behavioralism as given by David Easton. David Easton, one of the most important exponents and founders of the behavioralist political school of thought. And here are characteristics, 8 characteristics are there as told by David Easton. First one is regularities. The behavioralists hold the opinion that human behavior, despite its differences, shows more remarkable uniformities in political behavior which can be generalized and formulated in a systematic theory that is known as regularities. Second one is verification. The behavioralists do not accept anything as granted like the traditionalists. They do not believe in the abstract political theory. Rather, they verify and test everything. And so they believe in empirical or scientific results only which can be achieved after scientific verification. Third one is techniques. The behavioralists emphasize the adoption of correct techniques for acquiring and interpreting the scientific data. Only then valid, reliable, and comparable data can be achieved. And for this purpose, they suggest the use of sophistical tools like the analyze anything, sample, surveys, mathematical methods, etc. Next one is quantification, and the behavioralists contend that a researcher cannot properly explain political phenomena nor can be safely predict a political result for the future without measurement and quantification. Next one is values. It is the greatest point of difference between the behavioralists and the traditionalists over the question of value neutrality. While the behavioralists believe in value-free study, the traditionalists believe in value-laden study. So we have talked about it in our previous video when we were talking about the modern approach or modern political science regarding the values. And next one is systematization. So behavioralism believes that research in political science must be systematic, by which they mean that it must be theory oriented and theory directed, that theory and research should form as closely interrelated parts of knowledge, and that research and the theory should be connected to each other. And next one is pure science. So behavioralists by and large insist on what they call pure science approach. This means that whatever research they make, that should be applied in solving the problems of mankind. Therefore, they apply the scientific theory to the social problems. And last one is integration. Finally, the behavioralists believe that social and political phenomena cannot be studied in isolation. It is difficult to draw the exact dividing line between man's social, economic, political, cultural, and other activities, and they can be understood only in the wider context of the entire social life of the society. तो आज हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के उपागम व्यवहारवाद के बारे में। व्यवहारवाद हमारे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसे क्रांति भी कहा जाता है, जिसने कि हमारे डिसिप्लिन का, हमारे सब्जेक्ट के लक्ष्य, प्रकृति, नेचर,
सभी को पूरी तरीके से बदल दिया है। यह भी कहा जा सकता है कि इसने हमारे राजनीति, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है, दोनों के बीच में एक डिवाइडिंग अप्रोच का काम करता है, जिसने कि परंपरागत और राजनीति विज्ञान दोनों को अलग अलग भागों में बांट दिया। व्यवहारवाद से हमारे आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत अमेरिका से होती है, जबकि जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये समाप्त हो गया था 1945 में, और इसकी जो मेन इसके फाउंडर है, प्रतिपादक है, वो डेविड ईस्टन को माना जाता है। तो जो व्यवहारवाद है, वास्तव में इसका जो मुख्य फोकस है वो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अध्ययन करना है। व्यवहारवाद, टू पार्ट्स आर देयर, बिहेवियर प्लस आइडियोलॉजी इज देयर। सो व्यवहार प्लस वाद, व्यवहार मतलब मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने वाली विचारधारा या उपागम, जिसका मुख्य फोकस होता है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए। और ये अध्ययन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल ही आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, मूल्य मुक्त अध्ययन होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। और इस तरीके से हम लोगों के लिए जो डेविड ईस्टन है, उन्होंने इस व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं। वन बाय वन हम लोग उनको देख लेते हैं। पहला आ जाता है रेगुलरिटीज़, ऑल्सो नोन एज नियमितताएं। नियमितताओं का मतलब होता है कि व्यवहारवाद का यह मानना है कि यद्यपि सभी मनुष्यों का व्यवहार होता है वह अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी सभी मनुष्यों के व्यवहार में कुछ सामान्य तत्व, कुछ नियमित तत्व, कुछ एक जैसे तत्व पाए जाते हैं। और हम लोगों का काम ये होता है उन सामान्य तत्वों को ढूंढना, उनके आधार पर सामान्यीकरण करना और उनके आधार पर हमारे सब्जेक्ट को एक ऐसा रूप देना जिसके अंतर्गत हम लोग भविष्य के लिए भविष्यवाणी कर सकें। सेकंड आ जाता है वेरिफिकेशन, जिसे हम लोग सत्यापन कहते हैं। सत्यापन का अर्थ होता है कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के संबंध में जो कुछ हमने अध्ययन किया है, जो कुछ हम लोगों ने अनुसंधान किया है, उसे वेरीफाई करना, उसकी पुष्टि करना कि वो सही है, ये कहलाता है वेरिफिकेशन। तीसरा पॉइंट आ जाता है टेक्निक्स, तकनीकी। व्यवहारवाद का ये मानना है कि हमें हमारे सब्जेक्ट को साइंटिफिक, वैज्ञानिक बनाने के लिए और जो कुछ तथ्य या डेटा, आंकड़े हम लोगों ने एकत्रित किए हैं उसको जांचने के लिए हम लोगों को अलग अलग तकनीकों का हम लोग को यूज़ करना चाहिए, ताकि हम लोग हमारा जो ज्ञान है उसे हम लोग परिशुद्ध कर सकें, नए सांचे में हम लोग उसको देख सकें, नए परिप्रेक्ष्य में हम लोग उससे देख सकें, और उसके आधार पर हमारे जो पुराने तथ्य हैं जो कि हमें लगता है कि आज प्रासंगिक नहीं है, उनको हम लोग अप्रासंगिक भी ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिफिकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं परिमाणीकरण और मापन हम लोग कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो डेटा एकत्रित किया है, उपलब्ध जो हमारे पास में आंकड़े हैं, उनको मापन और उनका परिमाणीकरण किया जाना चाहिए, उनके शुद्धिकरण के। नेक्स्ट आ जाता है वैल्यूज़, क्योंकि व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य हमारे राजनीति विज्ञान विषय को वैज्ञानिक बनाना है, इसलिए इसके अंतर्गत हम लोग मूल्य या आदर्शों को कोई भी स्थान नहीं देते हैं। और यदि हम लोग इसके अंतर्गत मूल्यों की अगर हम लोग बात करें तो वो भी बिल्कुल हमारा जो सिस्टमेटिक, हमारा साइंटिफिक अप्रोच है उसको ध्यान में हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टमेटाइजेशन, व्यवस्थाबद्धीकरण। व्यवस्थाबद्धीकरण का अर्थ होता है कि हमारा जो रिसर्च होता है वो हमारा अनुसंधान और जो सिद्धांत है और उसके पीछे जो हमारा गहन शोध हम लोग करते हैं, वो दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो भी सिद्धांत बनाएंगे उसके पीछे हमें एक गहन और पूरा एक कहना चाहिए इंटेंसिव रिसर्च हमारी उसके पीछे होनी चाहिए। और जो कोई भी हम लोग अनुसंधान करें उसके आधार पर अनिवार्य रूप से कोई ना कोई सिद्धांत हमारा बनना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है प्योर साइंस, आ जाता है शुद्ध विज्ञान, आ जाता है। जैसा कि हम लोग बात पहले ही कर चुके हैं कि व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य हमारे विषय को एक शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस बनाना है। साइंटिफिक मेथड्स या टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं ताकि हम लोग हमारे राजनीति विज्ञान विषय को ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक बना सकें। और लास्ट वन आ जाता है इंटीग्रेशन, समग्रता आ जाती है, जिससे हम लोग एक तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतः अनुशासनात्मक
उपागम भी हम लोग कह सकते हैं। इंटीग्रेशन समग्रता का अर्थ है कि जितने हमारे विषय हैं वो सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसीलिए हम लोग एक विषय को हम लोग तब तक अच्छे रूप में नहीं समझ सकते हैं जब तक कि हम अन्य विषयों का भी प्रासंगिक अध्ययन ना करें। That's all for today from my side. Thank you very much.